Hello everyone, today we are doing another IELTS writing task 2, which is an essay, and our topic for today is: some people think that the best way to improve road safety is to increase the minimum legal age for driving a car or motorbike. To what extent do you agree or disagree? कुछ लोगों को लगता है कि रोड सेफ्टी इंक्रीज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो मिनिमम लीगल एज है ड्राइविंग के लिए उसे बढ़ा दिया जाए। अब हमें बताना है हम किस हद तक अग्री या डिसअग्री करते हैं इस स्टेटमेंट के साथ। Here is a sample answer for you guys. Some people believe that raising the legal age for acquiring a license would improve road safety. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि लीगल एज एक लाइसेंस मिलने के लिए अगर हम बढ़ा दें तो उससे रोड सेफ्टी इम्प्रूव होगी। They think that by increasing the legal age, more mature people will drive on roads and it will improve road safety. उनका मानना है कि लीगल एज बढ़ा देने से ज़्यादा मैच्योर लोग रोड के ऊपर ड्राइव करेंगे जिसकी वजह से रोड सेफ्टी अच्छी होगी। I do not agree with the statement as it will have a negligible impact and there are superior solution to the problem. मैं इस स्टेटमेंट के साथ अग्री नहीं करती क्योंकि इसका एक काफ़ी नेग्लिजिबल इम्पैक्ट होगा और इससे भी अच्छे, इससे भी सुपीरियर सॉल्यूशंस हैं इस प्रॉब्लम के लिए। To begin with, supporters of this policy reform argue that a disproportionate number of accidents happen today due to younger people. In most countries, it is possible to apply for a learner's license at the age of 16 years. जो इस पॉलिसी को, जो स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं, उनका मानना है कि एक डिस्प्रपोर्शनेट नंबर है एक्सीडेंट्स का जो आज की डेट में सिर्फ यंग पीपल की वजह से हो रहा है। ज़्यादातर कंट्रीज़ में 16 इयर्स एज वाले बच्चों को भी लर्नर्स लाइसेंस इजीली मिल सकता है। Teenagers often lack experience required to drive sensibly. They cannot handle challenging road conditions such as extreme weather and reckless drivers. जो टीनेजर्स होते हैं उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो रोड के ऊपर सेंसिबली ड्राइव कर सके। वो चैलेंजिंग रोड्स का जो कंडीशन है उनको हैंडल अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जैसे कि एक्सट्रीम वेदर है या फिर जो रेकलेस ड्राइवर्स होते हैं वैसे लोगों को वो रोड के ऊपर हैंडल नहीं कर सकते। If the legal age for driving is increased, they get more time to learn the rules of the road and become responsible drivers. अगर लीगल एज ड्राइविंग के लिए बढ़ा दी जाए तो उनके पास और टाइम होगा रोड के रूल्स याद करने का और रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर्स बनने का। This would apparently lead to a reduction in accidents, though there is little logical evidence to support this particular theory. ऐसा होने से एक्सीडेंट्स के अंदर रिडक्शन होगी, एक्सीडेंट्स का नंबर कम होगा, लेकिन काफ़ी कम लॉजिकल एविडेंस है इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। The causes of accidents are more closely correlated with other problems. जो एक्सीडेंट के रीजंस हैं वो ज़्यादा रिलेटेड है दूसरी प्रॉब्लम्स के साथ। The main reason for vehicular accidents globally is driving under the influence of alcohol. जो मेन रीज़न है एक्सीडेंट्स का ग्लोबली वो है ड्रिंक एंड ड्राइव। लोग अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद ड्राइव करते हैं। Most teenagers are not able to purchase alcohol legally and therefore a majority of the accidents are caused by individuals who are over the legal age for drinking. ज़्यादातर टीनेजर जो हैं वो अल्कोहल लीगली परचेज नहीं कर सकते, इसलिए जो मेजॉरिटी ऑफ एक्सीडेंट्स कॉज हो रहे हैं वो ऐसे इंडिविजुअल्स से हो रहे हैं जो मिनिमम लीगल एज ऑफ ड्रिंकिंग से ऊपर हैं। This statistics is also more prominent among mature individuals. Many urban areas, for example, were built a long time ago and modern understanding of motorist behavior could be beneficial. जो आजकल के ज़्यादातर अर्बन एरियाज हैं वो बहुत पहले बनाए हुए हैं और अगर हम आज के टाइम की जो मॉडर्न मोटरिस्टिक बिहेवियर है उसके बारे में और अच्छे से समझें तो वो काफ़ी बेनिफिशियल भी हो सकता है। To conclude, despite a marginal relationship between maturity and vehicular accidents, the authorities must make stricter drinking laws and implement better urban planning.
These changes would bring in the desired improvements. So कंक्लूड करने के लिए काफ़ी मार्जिनल रिलेशनशिप है मेजॉरिटी और जो व्हीकल्स के एक्सीडेंट हो रहे हैं उनमें. जो अथॉरिटीज़ हैं उनको स्ट्रिक्ट ड्रिंकिंग लॉ बनाने चाहिए और बेटर अर्बन प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए. सिर्फ इन्हीं चेंजेस से जो हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो हमारी डिज़ायर्ड इम्प्रूवमेंट है, उसे हम अचीव कर सकते हैं. So guys, this was our essay for today. I hope you guys liked it. Thank you for watching.